नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं भाजपा सरकार की खबर के साथ। आंदोलनकारियों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने जारी संघर्ष को तेज किया और 8 अक्टूबर तक पक्के मोर्चों को जारी रखने की घोषणा की और पंजाब के किसानों, मजदूरों और अन्य सभी वर्गों को अपने परिवारों के साथ मोर्चों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसान नेता कारपोरेट जगत के एजेंट के रूप में कार्य करने और आर्थिक सुधारों को अधिक तेजी से लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना करते हैं। भाजपा के राज्य के नेता बिना ठोस एजेंडा और लिखित निमंत्रण के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने अंबानिया और अदानिया के दबाव में 3 कृषि अध्यादेशों के तहत किसानों की आय को दोगुना करने और आंदोलनकारी किसानों को, मजदूरों को गुमराह करने और छिपे हुए एजेंडा को आगे बढ़ने का कड़ा विरोध किया। आज हजारों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी की मूर्तियों को जलाकर और खेत बचाओ, राष्ट्र बचाओ, भाजपा और कॉर्पोरेट हाउस के नारे लगाते हुए रेलवे ट्रैक बस्ती टैंक वाली पर स्थायी मोर्चे के 11वें दिन किसानों और श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। कल भी एक टारगेट धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अकाली दल भी कर रहे हैं, कांग्रेसी भी कर रहे हैं, आदमी फोटो चिपका रहे हैं। की कहना देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਆ। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 31 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 31 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਬੇ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪਰਚਾ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਆ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਆੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल अनाज मंडी का दौरा किया और धान की खरीद के वक्त ढेरी पर खुद मौजूद रहे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर साफ कह दिया कि उनके आने से कोई आपत्ति नहीं, पर कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी करनाल की अनाज मंडी में दौरा किया। धान की ढेरी पर खड़े होकर उन्होंने किसान की धान की खरीद करवाई। दरअसल सरकार की जो एजेंसी है वो सिर्फ समर्थन मूल्य तक धान खरीद कर सकती है, जो कि 1888 है। लेकिन नए कृषि कानून के हिसाब से किसान किसी को भी कहीं पर भी धान बेच सकता है। मुख्यमंत्री के सामने राइस शेलर में 1890 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान की धान खरीदी। बोली एजेंसी ने भी लगाई। एजेंसी को 1888 उनका मैक्सिमम रेट है, उसके ऊपर वो खरीदते नहीं है। आड़ती ने 1890, जो दूसरे बायर थे उन्होंने 1890 रुपये में बोली लगा करके उसको ले लिया है। भले ही 2 रुपये का लाभ किसान को मिला है, तो भी खुली बोली में कोई भी इसको आके खरीद सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार दूसरी ढेरी संयोग से वो किसान भी वही था सेम, उसके सामने 3 बार चेकिंग की है, तो तीनों बार 19 से ज़्यादा उसकी मॉइस्चर आई है। तो उसको कह दिया गया कि इसको 1 दिन के लिए सुखाएं और इसको 19 से नीचे लेकर के आएँ, तब उसकी किसानों ने बात रखी सरकारी पोर्टल्स कभी भी सही तरीके से नहीं चल पाते हैं। क्यों खामियां होती हैं, जबकि प्राइवेट जो पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स बनाई जाती है, आईटी एक्सपर्ट से बनाई जाती है, कोई कमी परेशानी नहीं आती। देखिए, इसमें उस पोर्टल में इस बार कुछ नई चीज़ों के प्रावधान किए गए हैं। और जैसे बाहर के जो लोग हैं, हरियाणा के बाहर के लोगों की मांग थी कि रजिस्ट्रेशन उनका किया जाए, वो भी उसमें डाला गया है। और इस बार पहली बार गेहूँ के साथ साथ बाजरा और कपास, ये चीज़ें भी उसमें लोड की गई हैं। तो ऐसे नए फीचर डालने के बाद लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो भी उन्होंने कहा कि हम 1 दिन के अंदर इस सारे को ठीक करेंगे। लगातार लगे हैं और मैं समझता हूँ जैसे 3 दिन 4 दिन किसानों ने, आड़तियों ने और मिल ओनर्स ने सबने कोऑपरेट किया है। 1-2 दिन किसानों के साथ मिल करके 1 या 2 दिन कोऑपरेट करेंगे तो सारी चीज़ें। आपको नहीं लगता कृषि कानूनों को लेकर जेजेपी पर समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है सर? भैया, मुझे इसमें कोई बात अन्यथा लगती ही नहीं है। जो 3 कानून बने हैं ये किसान के हित में हैं, और किसान के हित में जब हम कह रहे हैं तो जेजेपी भी इसको समझती है। केवल इनको वो लोग बरगला रहे हैं इन चीज़ों को जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो कांग्रेस के झूठ हैं, ये लगातार झूठों में घिरती चली जा रही है। आज नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं किसी भी बात पर जो कोई नया परिवर्तन लेकर के आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70-73 साल से यथास्थितिवादी पार्टी है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। किसी के हित में नए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका हमेशा वो विरोध करते रहे हैं, उसी में ये विरोध भी जुड़ा हुआ है। आने वाले इस सीज़न के बाद किसान को लगेगा जब हमारा एमएसपी पर सारी फसल बिक रही है, ठीक व्यवस्था से बिक रही है, पैसा सीधा किसानों को जाना शुरू हो गया है, कोई दुविधा नहीं है, तो किसान समझदार है, जल्दी समझ जाएगा। और किसान मार्केट कमेटी के दफ्तर में आपने बंद कमरे में बैठक की, क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई किसानों से? राइस मिलर से बातचीत हुई आपकी? उनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो सारी जानी है। मेन उसमें जो पोर्टल वाली बात है मैंने बताई है, और चंडीगढ़ किसानों ने आरोप लगाया, आड़तियों ने आरोप लगाया कि यूपी जो टापू पुल और जो मंगलोरा का पुल है, वहाँ से जो ट्रॉली आती है 500-1000 रुपये कुछ पुलिस कर्मचारी वहाँ पर लेते हैं उनसे हर ट्रॉली। पहली बात तो गलत है, लेकिन अब वहाँ पर जब उनको कहा गया है कि बाहर के लोगों को जल्दी नहीं आना चाहिए, 5 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन उनकी खुलेगी, उसके बाद उनको आना चाहिए, तो ये कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्था में सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। इतना सर, चुनाव समिति की बैठक है आज भारतीय जनता पार्टी की, किसने कहा जानकारी? वो बिहार का कांग्रेस के प्रभारी करनाल, वैसे तो मैं कहा करता हूं कि सेवा करने वालों का एक बहुत बड़ा एक सागर है। सेवा कार्य करने में यहाँ की जनता बहुत रुचि लेती है। उसी क्रम में गुरुद्वारा मालटाउन की ओर से ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ लगाए गए हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी का है या फिर जो जनरल टेस्ट्स हैं, ब्लड टेस्टिंग और बाकी सब टेस्टिंग, उनकी जो मशीनें लगाई गई हैं, आज उनका उद्घाटन यहाँ हुआ है। और समाज को एक अच्छी एक सेवा सर्विस, हेल्थ सर्विसेज की ही एक रिक्विजिट वो उससे है पहले की उसकी जो आवश्यकताएं हैं, तो आम आदमी को सस्ते रेट पर ये मिले, इन्होंने शुरुआत की है। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इनका आभारी हूँ कि इस प्रकार की सेवा
और लोगों को प्रेरणा मिले कि और भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है इस प्रकार की सेवाएं शुरू। सर, एक राहुल गांधी का प्रोग्राम जो है बन गए हैं, 7 तारीख को करनाल के नीलोखेड़ी और पिपली में आ रहे हैं। कल आपसे पूछा था, आपने कहा था कि अब तक प्रोग्राम नहीं बना। कल देर रात जो है इसका प्रोग्राम बनाया है, हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठा होंगे, ट्रैक्टर रैली की जाएगी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए? देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वातावरण को खराब ना करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें, तो हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के। गृह मंत्री का बयान आया था कि उनको आने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। काम रुका हुआ है। देखिए, सारे काम चल भी रहे हैं और अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी आई है तो कोरोना के इस साल में कुछ जो परिस्थितियां बनी हैं उसके कारण से कहीं की कठिनाई आई है, लेकिन अब वो पहले 3 महीने का जो मामला था उसमें से हम पार हो चुके हैं और अब आगे सारी स्थितियां। सर, मंडियों में धान की खरीद को लेकर आप मंडियों का दौरा भी करेंगे? क्या कुछ सामने सीएम साहब मीटिंग में थे और हम थे, हमने ये मांग की है कि जो किसान आ रहा है मंडियों में उसके आने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। वो कहते हैं कि हम शेड्यूल के हिसाब से लेंगे। हमने कहा शेड्यूलिंग हो नहीं रही क्योंकि पोर्टल बड़ा स्लो चलता है। अगर किसी की शेड्यूलिंग नहीं हो रही तो उसके फसल लेके उसको शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो उसको तंग मत किया जाए। हमने सिर्फ यही मांग किया। तो उस पे वो सहमति दे, वो डीसी साहब को बोलेंगे, वो डीसी साहब करेंगे। और राइस सेलर्स की जो मांग वगैरह थी वो भी वहाँ राइस सेलर की तो पहली मांग हो गई। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कहीं ना कहीं अब देखते हैं शेड्यूल कैसे चलता है, जैसे चलेगा उसके बाद पता लगेगा। अभी तो बोल के गए, सुधार तो हो गई। अब तो बोल के गए वो। आज मंडी में उन्होंने बोली वगैरह भी लगाई। हाँ, वो मॉइस्चर देखा है, उसमें मॉइस्चर 15 था। अब 15 से नीचे मॉइस्चर आ नहीं सकता ना। अब जब 15 मॉइस्चर की फसल आ रही है मंडियों में तो उनको क्यों रोका जा रहा है? हमने तो यही मांगी थी कि उनको आने दिया जाए। खबर यूपी के जनपद मेरठ से है। दोराला नगर स्थित भगवान देवी विद्यापीठ के प्रांगण में सागर पार भारतीय क्रांति के पहले प्रचारक श्री श्याम कृष्ण जी के जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री श्याम कृष्ण जी के जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धीरेन्द्र राकेश भारद्वाज ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि 73 वर्ष बाद श्याम जी की अस्थियों को नरेंद्र मोदी जी भारत लाए थे। श्याम कृष्ण जी अपने अंतिम दिनों में जिनेवा में रहे। वहीं 30 मार्च 1930 में इनका निधन हो गया। उनकी इच्छा थी कि देश आजाद होने के बाद ही उनकी अस्थियां भारत लाई जाए, इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी 2003 में उनकी अस्थियों को भारत लाए। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, जिसने गलत किया है उसे सजा अवश्य मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जांच जारी है, जो होगा सामने आएगा। यमुनानगर में मीडिया से बात करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अशोकनगर सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई किसी को जेल में नहीं डाल सकता, जेल में डालने का निर्णय कोर्ट का होता है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दान का जैसा पहले भी कहा कि मैं एक दाना दान का खरीद देंगे, और अभी आप देख रहे हैं कि सारा सिस्टम ठीक हो गया पहले से, और इस टाइम सारी जगह लिफ्टिंग ठीक तरीके से चल रही, और अगर कहीं छोटी मोटी कमी है तो 1-2 दिन में उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार का व्यवहार किसान यूनियन कर रही है, यानी कि अब की बार कुछ चेंज लेके आई सरकार, ताकि जिस प्रकार की पहले थोड़ा घपला होता था दान के मामले में, जैसे पिछली बार कई बार उसकी चेकिंग भी कराई गई, ताकि इस प्रकार की गड़बड़ें ना हों, तो उन गड़बड़ों को रोकने के लिए थोड़ा सा एक चेंज किया गया। तो अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करेंगे थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा ठीक करने में। तो अगर मान लीजिए पहले 2 दिन इस प्रकार की कोई समस्याएं आई तो चाहिए था कि उसमें आराम से बैठ के उनको ठीक करने देते हैं, बजाय ठीक करने के कोई सड़क पे आके खड़ा हो गया, कोई नारेबाजी करने लग गया। लेकिन 2 दिन में सारा कुछ अधिकारियों ने ठीक कर लिया, और अभी आप 2 दिन से देख रहे हैं ठीक तरीके से लिफ्टिंग हो रही, ठीक तरीके से खरीद हो रही। चाहे सेलर वाले थे, उन्होंने भी, उनके साथ ही बातचीत हुई, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया, मंडी वालों ने भी अपना काम शुरू कर दिया, ठीक तरीके से काम चल रहा।
तो राहुल गांधी जी के आने की जरूरत थी या नहीं? देखिए, राहुल गांधी, जहाँ तक मेरा मानना है, वैसे तो प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का कोरोना की वजह से जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पूरे देश में बढ़ी हुई हैं, ऐसे में बड़ी भीड़ इकट्ठी करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम है। और जितनी बड़ी पार्टी के वो मतलब अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनको एक जिम्मेदारी का ही व्यवहार करना चाहिए। और ऐसे में भीड़ इकट्ठी करना या दूसरा करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है उनका। जिस तरह सरकार कह रही है कि राहुल गांधी तो आए लेकिन जुलूस के साथ नहीं, लेकिन टकराव की भी स्थिति बन सकती है। नहीं, हमारा यही तो कहना है ना जी, हमारा यही कहना है कि राहुल गांधी जी अपनी बात कहें। और आजकल तो बहुत से माध्यम हैं, आप चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी बात कह सकते हो, आप वेबिनार भी कर सकते हो, उस पर भी अपनी बात कह सकते हो, सोशल मीडिया के तरीके से भी अपनी बात कह सकते हो। तो भीड़ से बचना ही चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, हमारा मानना ही है। और यही सरकार ने भी कहा है कि भाई वो भीड़ इकट्ठी ना करें, बड़ी संख्या में ना चले, वो अपनी बात कहे, हमें बात से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बात तो है ही नहीं कुछ कहने के लिए उनके पास। जो 3 कानून हमने बनाए, तीनों कानून 100% किसान के हित के हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना जी, वो ये तो बिचौलियों के समर्थक हैं और या किसान को तरक्की नहीं करना देना चाहते हैं, वो तो किसान की तरक्की रोकने के पक्ष में। और कांग्रेस ने तो कभी जिम्मेदारी के व्यवहार किए ही नहीं। अभी सीए कानून बना था तो सारे हिंदुस्तान में एक बात फैला दी कि मुसलमानों की तो नागरिकता ही खत्म हो जाएगी इससे, जबकि उसमें नागरिकता खत्म करने को कोई सवाल नहीं था, तो खाली नागरिकता देने वाला था। तो जिस प्रकार से उसमें झूठ पकड़ने का काम किया, इसमें वैसे ही झूठ पकड़ने का काम कर रहे हैं। और ये पोल ज़्यादा देर चलने नहीं है, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़े करती, जैसे अभी ने ये सारा कर रहा। तो आप देखेंगे 2-3 महीने में सारा का सारा ये उल्ट होगा। और इन लोगों को, जो लोग आज थोड़ा बहुत इनके साथ जा रहे हैं, तो इन लोगों को गुस्सा आएगा इस बात से कि देखिए जो कानून हमारे हित का था और कांग्रेस उसी का ही विरोध कर रही थी और हम ही साथ लेके उसका विरोध कर रही थी, तो निश्चित तौर से गुस्सा फिर कांग्रेस के ऊपर ही निकलेगा। जिले की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ क्या स्थिति है गेहूँ खरीद? हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है और सारा हमारे यहाँ खरीद बिल्कुल ठीक से चलेगी और ठीक से लिफ्टिंग चलेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले टाइम में बिल्कुल कोई समस्या पैदा नहीं होगी। स्टार्टिंग की थी, कुछ थोड़ा सा नए चेंज किए थे, इसकी वजह से थी। और कुछ जिस प्रकार के ये लोगों ने जिस प्रकार से किया व्यवहार, कोई भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। सरकार आपकी अपनी सरकार है, आपने चुन रखी सरकार भी। तो सरकार अगर कोई चीज़ को ठीक करने लग रही, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, तो सहयोग करना चाहिए। अब ये कोई तुक नहीं था इस बात का कि आप जाके सड़क जाम कर दोगे या और हल्ला करोगे, आप भी सहयोग करो। और 2 दिन में हमने ठीक कर लिया और आज आपके सामने है कि ठीक तरीके से खरीद भी रही, ठीक तरीके से लिफ्टिंग भी रही और बिल्कुल ऐसी चलेगी ठीक तरीके से। इसमें सर पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे अशोक तौर, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ है, नूरा कुश्ती करती है, हुड्डा की जो जिसने ज़मीन घोटाला किया उसकी फाइलें बंद कर दी गई और बाकी जो चौटाला था उनने गलती करी उसे जेल में डाल दिया। मेरा जेल में भी शायद उस टाइम कांग्रेस के टाइम में डाले गए, लेकिन जेल में कोई ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा डाल सकता है किसी को, नाम डाल सकते हैं जेल में किसी को। अगर कोई दोषी है तो इसका निर्णय लेना कोर्ट का काम है, कोई जेल में नहीं डाल सकता किसी को ऐसे, तो वो तो कोर्ट का काम है। अब चाहे फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलती करो, चाहे मैं गलती करूँ, चाहे कोई भी गलती करो, हर आदमी कानून से ऊपर कोई आदमी नहीं है। अगर हम गलती करेंगे तो हम भी जाएंगे और कोई और करेगा तो वो भी जाएगा, चाहे किसी की पार्टी कुछ भी हो। तो अगर उन्होंने गलती करी, उसकी जांच चल रही तो जो भी होगा उनको होगा, सजा होगी उनको। अगर वो गलत करेंगे तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सर बड़ौदा चुनाव में कह रहे हैं कि लोग तो बीजेपी को हरवाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को जितवाना चाहती है। देखिए, वो पहले अध्यक्ष रहे ना कांग्रेस के और वहाँ से हट गए, तो इसलिए अब मतलब इस प्रकार के उल जुलूल बयान देने का शायद सोच रहे हैं, कोई छप दे तो ठीक है। देखिए, बीजेपी की स्थिति वहाँ बहुत मजबूत है, वहाँ की जनता ने हमारे विकास के कार्य देख लिए और वहाँ की जनता में जिताना चाहती है। और पिछली बार भी आपने देखा कि बहुत छोटा मार्जिन था हमारा हारने का, वहाँ से बहुत मामूली मार्जिन से हारे हम। और अब की बार निश्चित तौर से 100% सीट हम जीतेंगे। इसमें सर आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, उसमें अपने मुख्यमंत्री भी भाग ले रहे हैं, तो किस तरह के निर्णय आ सकते हैं जी? देखिए, जीएसटी जब लागू हुई उसके बाद जीएसटी में बहुत से सुधार हुए। जो टैक्स थे, जो काफ़ी ज़्यादा टैक्स थे, उनको काफ़ी कम किया। और लगभग काफ़ी टैक्स तो ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा कम करे।
तो ये सुधार की प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहेगी। जीएसटी पे भी बार बार विचार होता रहेगा, कहाँ हम किसको राहत दे सकते हैं, कहाँ इसमें हम उस पर विचार कर सकते हैं। पहले जब जीएसटी लगी, देखिए जो टैक्स थे ना जी, वो सारे टैक्स को मिला के जितना टैक्स था उतना ही टैक्स लगाया गया था, कोई अलग से टैक्स नहीं लगा। तो जितना टैक्स सारा था वो लगाया गया, लेकिन उसमें सुधार करते जैसे उस अच्छा टैक्स आना शुरू हुआ तो सरकार ने उसमें पुनर्विचार किया और पुनर्विचार करके उसमें टैक्स कम करने का काम किया। अब फिर दोबारा मीटिंग होती रहेगी, तो ये सुधार चलते ही रहते हैं, ये एक प्रक्रिया है और सुधार होती है। सरकार कोई ऐसा नहीं है कि रुपये इकट्ठे करने वाली, टैक्स इकट्ठे करने वाली एजेंसी है ये कल्याण करने वाली और लोगों की सेवा करने वाली एजेंसी है। अब इसका मतलब कोई टैक्स इकट्ठा करना नहीं खाली टारगेट है, इस तरीके से टैक्स इकट्ठा करना सरकार का उद्देश्य होता है कि जो विकास के कार्य वो भी हों और जो जिससे वो टैक्स ले रहे उसको भी ऐसा ना लगे, कोई मतलब इतना भी ना लगे कि इंडस्ट्री उससे प्रभावित हो जाए, इंडस्ट्री खत्म हो। तो ऐसा ऐसा उसमें सुधार करते किस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री बढ़ सकती है, आगे ग्रोथ कर सकती है, लोगों को जिससे रोजगार मिलेगा, तो उसमें बार बार विचार करते हैं और उसमें सुधार करते हैं। इसमें सर जैसे कोरोना काल चल रहा है तो स्वास्थ्य सेवा जो रिकवरी रेट हरियाणा का काफ़ी बढ़ गया, नेशनल से भी ऊपर चला गया, तो किसको श्रेय देते आप? नहीं, बिल्कुल हमारे मंत्री जी ने, हमारे अधिकारियों ने, सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। शुरू से ही हमारा अच्छा है, शुरू से ही हम मेरा नेशनल से तो मेरा लगा शुरू से ही हम लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, लेकिन हम ऊपर रहे हैं। और मैं मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ इसके लिए और अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ और मैं जनता को बधाई देता हूँ कि जनता ने भी उसमें सही। खबरों के सिलसिलों में सफर रहेगा जारी। अब मुझे दीपांशी पुहाल को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।